Hello students, welcome back. Welcome back to the module. I hope you all are doing well. Chalo, let's begin with the features of planning. I will continue. We have done the 5 features in the last lecture and rest we are gonna cover, and I'm gonna give you some extra features of planning with the explanation. So have a look, be very concentrated, and the extra points, it will be very good for you to write some extra points. All right, okay, chalo, let's begin. The 6th point is, which is written in your book, that planning involves decision making. See, it is very, very important because you have seen in the definition section where we talked when we were doing the concept of planning, I was telling you about the decision making and those things. So it essentially involves choice from among various alternatives and activities. See, there are like so many alternatives to do one work. Okay, there are so many alternatives जो कि किसी भी एक काम को करने के लिए सपोज अगर 10 आइडियाज हैं, आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट एंड यू हैव टू चूज द वन आइडिया आउट ऑफ दैट. तो उसको चूज करने के लिए, उस उन ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जो डिसाइड करते हैं आप, दैट इज डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग ओनली, वेयर यू विल there is only one possible goal or a possible course of action. There is no need for planning because there is no choice. Okay, अगर कोई एक ही किसी चीज को करने का कोई एक ही ऑप्शन है, there is only one option, one choice to do anything, so you don't need to plan. There is no need to plan otherwise, और maximum time ऐसा होता नहीं है. You have to plan because you have to choose from different courses of action. All right, तो basically इसका मतलब यही है दैट इफ देयर इज ओनली कोई एक ही तरीका हो किसी चीज को करने का, तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो देयर विल नो नीड फॉर प्लानिंग. बट देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स देयर, लॉट्स ऑफ चॉइसेस देयर, then you have to plan, you have to decide, you have to choice. Okay, so it involves decision making where the need for planning arises only when alternatives are available. Okay, in actual practice, planning presupposes the existence of alternatives. Obvious बात है कि अगर आप practically देखें तो हर जगह पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि there are not so many ways to do a single work. You want to achieve some single objective, you will have to have different and distinguished alternatives. You will have distinguished alternatives which you want to perform, which you want to deal with. Okay, and these distinguished में से, इन different objectives में से, in different alternatives में से, you have to choose the best one for you, right? Choose the best one. ओके, तो ये तभी होता है और ये ऑलरेडी प्री सपोज्ड होता है कि आपको चूज करना ही पड़ेगा. द मोमेंट यू विल थिंक अबाउट प्लानिंग, यू विल बी ऑल्सो थिंकिंग कि ओके, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास में, क्या क्या कर सकते हैं हम, उसमें से कुछ एक चूज करना है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्री सपोज्ड होगा, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होगा कि आपको इन इन प्रॉब्लम्स में से, इन इन ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है. Thus, planning thus involves thorough examination and evaluation of each alternative, choosing the most appropriate one. Okay, see, it is very important that you have to thoroughly examine the alternative. You have to examine, you have to evaluate, you have to analyze. Okay, सबसे सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको अच्छे से इवेल्युएट करके, एनालाइज करके, एक तरीके से आप मतलब अपने विजन्स को उसमें कोरिलेट करके, देन हर ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करने के बाद में यू विल चूज द बेस्ट वन फॉर यू, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर यू. सी, आई एम नॉट सेइंग कि ये करने से मतलब पक्का है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्यूरेट कंप्लीट हो जाएगा. आई एम सेइंग दैट देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी व्हेन यू विल चूज द बेस्ट course of action for you, the best alternative for you. Okay, so that is how it works, that is how it performs. All right, okay, so 7th one is, it is also mentioned in your book, and it says that planning is a mental exercise, which I was telling you in the last lecture. It is an intellectual process, it is a mental exercise. How? It requires application of mind involving foresight,
intelligent imagination and sound judgment. See, अभी when somebody would tell you कि आपको कोई तरह का प्लान करना है, अभी वो प्लानिंग छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, if you need to plan, you will have a thought process, a sound thought process where you will be thinking by step by step. ओके आपकी थॉट प्रोसेस में एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट इमेजिनेशन बैठनी चाहिए, क्योंकि एनीवे यू आर वर्किंग, you are planning for something, so you must have that imagination ki how does it how do you classify, how does this perform, how you know this will go on. तो एक तरह की इमेजिनेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में ये मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि इमेजिन करना इज नॉट सो इजी इन अ गुड वे, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इमेजिन करना, फिर उनको एनालाइज करना, ठीक है, उनको एनालाइज और इवेल्युएट करने के बाद में यू विल डिसाइड कि अभी हमें एक प्रॉपर जजमेंट चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग लेनी है, क्योंकि इस जजमेंट के ऊपर ही पूरा पूरा आपका ऑब्जेक्टिव, पूरा साल का प्रोसेस, पूरा प्रॉफिट अटेनिंग का जो प्रोसेस है दैट विल डिसाइड. तो ये जजमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ज्यादा साउंड होना चाहिए कि सो दैट आप उसमें यू जस्ट कैन नॉट गेट फेल, राइट. तो ये सब होने के लिए यू हैव इट, मतलब इट विल हैव अ मेंटल एक्सरसाइज, पूरा दिमाग का कचरा करना पड़ेगा, अंदर पूरा अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, यू विल थिंक डिफरेंटली, यू विल हैव दैट प्रॉपर विजन. हर चीज का विजन लाने के लिए, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एनालाइज करने के लिए, आगे की सिचुएशंस हैंडल करने के लिए, और साथ में आपको एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए कि चलो ये प्लान हमारा है और इस प्लान के ऊपर हम टिके रहेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ वी विल गो beyond the objectives and whatever it is. तो उसके लिए you have to have you will go through lots of mental exercises where you will, आपका mental जो position है, mental exercise है, वो बहुत बहुत मैटर करेगा. It will be an intellectual process, you just it will come by experience, observation or whatever it is, लेकिन आपका mentally एक तरीके से स्टेबल होना और उसको इस तरीके से यूज करना, आपका फोरसाइट, आपका चीजों को देखने का नजरिया, फोरकास्टिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग रहना, कोरिलेट कर पाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच शुड बी देयर व्हाइल प्लानिंग. तो प्लानिंग कोई ऐसे कोई भी तरह की प्लानिंग हो तो कोई यूं ही हवा में नहीं कर सकता. यू विल हैव टू हैव a stable thought process, a stable mind. Okay, so that is how it says that it is a mental exercise. Okay, so it is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. Okay, see, अभी करना तो आपको प्लानिंग की बात है, प्लानिंग itself is a activity of thinking. Okay, you have to think. आपको कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है. देयर इज नो एग्जीक्यूशन हियर. ओके, देयर इज नो एग्जीक्यूशन हियर. यहाँ पे आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, यहाँ पे आपको थिंक करना है, सोचना है. वो भी मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि आपके आने वाले एक्शन को डिटरमाइन करेगी. इट विल डिटरमाइन द you know the action of yours which you are gonna do आगे जाकर forward, right? So it is a process of thinking, not knowing. Firstly, एक तो ये हो गया. तो जो सोचना है obviously, so it is a mental activity, it is a intellectual activity, क्योंकि आप सोचेंगे तो दिमाग से, ठीक है, तो ये mental activity हो गई. ओके, सो इसमें कोई फिजिकल वाला काम नहीं है कि आपको बड़े ईंट पत्थर उठाने हैं और समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी स्टेबल एट योर mental peace, at the mental stage where you have to think. Okay, you have to think properly, you have to analyze. अभी analyze करने के लिए भी आपको कुछ हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग चलाना है. तो ऐसे बोलते हैं ना कि अभी पढ़ाई करने के लिए भी कुछ लेबर करने की जरूरत नहीं है, आपको झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे. यू हैव टू सिट एंड यूज योर ब्रेन. सिमिलरली प्लानिंग करना भी एक तरीके का जो भी एनालिसिस है वो आपका ब्रेन करता है, ठीक है. आपका जो इमेजिनेशन है उसमें भी आपको कुछ फिजिकल करने की जरूरत नहीं. यू विल इमेजिन बाय योर ब्रेन, बाय योर माइंड, राइट. और आप कुछ भी कोई भी विजन सेट करेंगे तो वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज होगी. और ये सब कुछ जो है, ये सब इट विल इंक्लूड इन प्लानिंग. Okay, I hope you agree to me.
सो बेसिकली ये पूरी प्लानिंग है यार, मतलब इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग. सो आपका प्लानिंग ही डिटरमाइन करेगा आने वाला एक्शन कैसे होगा, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन यू विल बी टेकन एंड सो मेनी थिंग्स. बट प्लानिंग की स्टेज पे यू विल ओनली बी थिंकिंग and there will be only the activity of thinking, nothing else. Okay, nothing else. All right. So however, planning requires logical, systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. See, बहुत ही नॉर्मल सी बात है. ऐसा अपन अपने पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि यू नो वो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत बोला करते थे दैट हवा में बातें करने की जरूरत नहीं है. इफ यू नीड टू प्लान समथिंग, डू अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर. हवा में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सिलेबस बड़ा सारा बना लिया बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. यू हैव टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली. तो ये जो लॉजिक है इसका और सिस्टमैटिक थिंकिंग का मतलब क्या है पता है? लॉजिक का मतलब हो गया कि आपको एक तरीके का प्रॉपर कोरिलेशन रखना पड़ेगा आपके प्लानिंग और सिमिलरली आपके कोर्सेज ऑफ एक्शन में. सपोज कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ओके, अभी उनको कपड़ों के लिए प्लान करना है, तो दे कैन नॉट थिंक कि टेक्नोलॉजी का ये सीन है, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन करना है. दे विल थिंक कि उनके प्रोडक्शन पे उनको ध्यान देना है. सिमिलरली ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है तो दे विल सी अबाउट द टेक्नोलॉजिकल थिंग फर्स्ट. तो ये उनके लॉजिक्स हैं जो वो लोग लगाएंगे बिकॉज ये वो कोरिलेट कर पाएंगे. उनको कोरिलेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट से, अपने आने वाले विजन से. तो दैट इज द लॉजिक दे हैव टू मेक व्हाइल प्लानिंग. ओके, एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग का मतलब है कि अगर आपको, मतलब सिस्टमैटिक का एकदम बेसिक मतलब ये है कि आपको हवा में बातें नहीं करनी है कि भाई हम हमारे पास लेबर वेबर कुछ है नहीं, हमने बोल दिया हम 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर लेंगे, सपोज ऐसा कुछ बोल दिया. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी सिस्टमाइज्ड. यू हैव टू प्लान, you have to have the labor, you have to have resources, and then how you will plan. ओके, अकॉर्डिंगली यू विल प्लान. ठीक है, तो वो एक स्ट्रैटेजी पूरी स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू विल परफॉर्म. ऐसा नहीं होता है कि चलो गैस कर लेंगे कि इतना इतना है तो हमारे अंदाजे होता ना, अंदाज वाला काम वो नहीं हो सकता इसमें. देयर शुड नॉट बी एनी गेस वर्क और एनी विशफुल थिंकिंग कि मेरी ये इच्छा है कि मैं 10 साल बाद में जो है वो अरबपति बन जाऊं. तो ये इच्छा आपकी इच्छा ही रह जाएगी इफ यू विल प्लान दिस वे. ठीक है, आपकी इच्छा को एक ऑब्जेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को लॉजिक से और सिस्टमैटिक थिंकिंग से रिलेट करना पड़ेगा. देन हाउ यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर प्लान इन योर वे. Okay, so it will all be a mental exercise where you have to relate, we have to give logics and so many things. Okay, in other words, thinking for planning must be orderly and based on analysis of facts and forecast. Okay, सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं प्लान करने के बारे में, इफ यू आर थिंकिंग, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स, टू मेजर थिंग्स, एंड दैट इज फर्स्ट वन इज कि आप एनालिसिस करें फैक्ट्स का. आपके जो भी फैक्ट्स हैं उनका एनालिसिस होना चाहिए कि आप कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं. एंड सेकेंडली, you have to forecast, you have to think, you have to believe on the vision of yours, you have to forecast accordingly, and then उन forecasts पे आपको believe करके आपको planning करनी है. आपको सोचना है कि 10 साल बाद में ये मार्केट की कंडीशन है तो नेक्स्ट ईयर तक ऐसा हो सकता है, इसलिए ये हमने एनालिसिस किया, इवैल्यूएट किया, नाउ विल डू प्लानिंग. ये सब कुछ जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज होगी. इट विल ऑल बी अ मेंटल एक्सरसाइज विच यू हैव गो थ्रू नोइंगली और नॉट नोइंगली कि क्या हो सकता है रिजल्ट. लेकिन आउटकम पॉसिबल, बेस्ट आउटकम के लिए यू हैव टू थिंक, यू हैव टू आपके दिमाग को अच्छे से पूरा ब्रश ऑन करना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द फीचर that planning is a mental exercise. Okay, now extra point, it is a forward looking process. As I said, it is a futuristic, it is quite similar. So planning जो है process को, मतलब this planning process also calls visualizing the future. ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ था आपकी बुक में, that is why I have written here. तो visualize करना future को is planning. ओके, प्लानिंग को ये भी कहा जाता है. ये एक टेक्निक है टू सी द फ्यूचर इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट में फ्यूचर को
देख पाना ट्रांसलूसेंटली सही, वो है प्लानिंग। ओके, तो इट इज अ फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, राइट? अगर आज की डेट में मैं आपको ये अश्योरेंस दे रही हूँ दैट यू विल गेन द हाईएस्ट मार्क्स और 90+% in your 12th standard in your board examination, तो ये मेरी एक प्लानिंग है जो मैं आपको, जो एग्जीक्यूट होने वाली है। इस प्लानिंग के थ्रू मैं आपको एक रिफ्लेक्शन दे रही हूँ फ्यूचर का। एज सिंपल एज दैट, राइट? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर विच आई एम अश्योरिंग यू कि ऐसा हो जाएगा। if you will be studying good, if you will be seeing the lectures, you will be connected to us, तो ये हो सकता है। I am assuring you, I am giving guarantee to you. Why? Because ये मेरी प्लानिंग है, मैंने इस तरीके से प्लान किया है, एनालाइज किया है, और दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू विद दिस मच अश्योरेंस। तो ये कब हो पाता है? ये तब हो पाता है जब यू थिंक दिस वे। ओके, सो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये आपकी फ्यूचर के प्लान्स के को प्रिपेयर करता है। इम्प्लीमेंटेशन जो बाद में होने वाली है उसको पहले से प्रिपेयर करता है। It is also intended to cope up with future uncertain events and situations. Okay, future में कोई भी uncertain events हो गए, या फिर कोई भी changes आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी different situations हो सकती हैं, या फिर कोई तरीके का change आना, कोई नुकसान हो जाना, कोई क्योंकि सर्टेनिटी तो होती नहीं है, टाइम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो हर तरीके की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आपने जो प्रिडिक्ट किया वो तो ठीक है, लेकिन देयर आर सो मेनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उन सबको सबसे कोप अप करने के लिए प्लानिंग जो है वो आपको हेल्प करती है व्हेन यू थिंक टुवर्ड्स द फ्यूचर। ओके, सो इट इज द फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ओके, सो अभी एज आई सेड इट इज फ्लेक्सिबल, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, इट इज मतलब जो प्लानिंग है उसका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है। नाउ यू विल टेल मी हाउ। सी, कैसा है कि प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, जैसे कि आपने बताया, और फ्यूचर ऑब्वियसली अनसर्टेन है, जैसे कि अपन ने जस्ट अभी देखा, इट इज अनसर्टेन यार। यू कैन नॉट डिसाइड कि अभी 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। इट कैन हैपन एनी, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, सम नेचर डिजास्टर, सम गुड सम बैड। लोगों की एक मतलब 2-3 मिनट में लाइफ चेंज जाती है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। पीपल गेट फेमस इन लाइक इन अ डे, and that day is the game changer of their life. There are so many things. Yeah, it is very interesting, but I have time constraint, so let's focus on the features. So basically what I'm telling you is कि future is uncertain, ठीक है? तो उस प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, जो कि अनसर्टेन है, जहाँ पे प्लान्स फेल भी हो सकते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अनफेवरेबल चेंजेस आप हो सकते हैं बहुत सारे, जो कि आपको देखने पड़े। जैसे कि किसको पता था कि कोरोना क्राइसिस इतना लंबा चौड़ा, इतना सब कुछ चल जाएगा, इतनी डेथ्स होंगी इंडिया में, और इंडिया विल आल्सो टॉप इन द ग्लोबल लेवल इन दिस फील्ड, इन दिस कोरोना थिंग। ओके, इतने लोग मरेंगे, इतना क्राइसिस होगा, इतना इकोनॉमिक लॉस होगा, नोबडी हैज थॉट यार, नोबडी। ओके, तो ये इस क्राइसिस को कोप अप करने के लिए जो बिजनेसमैन है उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस है वो इतने ज्यादा अफेक्ट हुए हैं हर तरीके से। हमारी देश की इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, एवरीबडी हैज अफेक्टेड इन डिफरेंट वे। तो ये क्या है? ये सारे चेंजेस हैं, अनफेवरेबल चेंजेस है, अनसर्टेन चेंजेस है जो हुए हैं, एंड फॉर दैट हमें हमारे प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रखनी पड़ेगी, प्लान को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो पहले के प्लान थे वो सारे फ्लॉप हो जाएंगे। सी, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बिजनेस के छोड़ो, लॉस हो गया, 4 महीने का लॉकडाउन, एंड बिजनेस पूरा बंद पड़ा है, हमारी सेविंग्स पे हम चल रहे हैं, एंड तो अपने जो बिजनेस के जो अपकमिंग ईयर के प्लान थे वो सब फ्लॉप हो गए। वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, राइट? तो ये कभी हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब यू विल बी थिंकिंग कि हमें इन चेंजेस को डील करना पड़ेगा, जब आपको ये पता होगा कि टाइम इतना फ्लेक्सिबल, इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के थ्रू आप एक रिजिड प्लान नहीं रख सकते, इट कैन नॉट बी रिजिड, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। Now, managers have to get ready in changing their plans, of course, so that changes do not fail the plans.
ठीक, सी कैसा है कि अगर आपका कोई प्लान है, आपने ईयर के बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही यू हैव प्लान समथिंग, ठीक है, आपके टॉप लेवल ने आपको प्लान बना के दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट की, अभी डिपार्टमेंट्स में कुछ अनफेवरेबल चीजें हो रही हैं, तो डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स जो हैं दे विल चेंज देयर प्लान सो दैट उन, अगर वो स्टिक रहेंगे तो शायद उनको चांसेस लग रहे हैं कि वो फेल हो जाएंगे, तो दे विल स्लाइटली चेंज देयर प्लान सो दैट फेलियर्स के चांसेस जो उनको लग रहे हैं वो एटलीस्ट थोड़े तो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। सो ये कभी हो पाएगा जब यू विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, तो it is a flexible activity and you have to perform this activity in this way only, you just cannot deny this fact कि ऐसे नहीं हो सकता, you have to stick on this thing, you have to be very flexible and planning is also very flexible. If your plan will be rigid, अगर वो इतने स्टिक रहोगे आप अपने प्लानिंग पे और दिख रहा है कि भाई फेलियर सामने खड़ा है फिर भी हम तो टिके रहेंगे, हमने यही डिसाइड किया है, तो you won't get success for sure. So planning leads to flexible things, it is a dynamic activity, it is flexible. All right, now foundation of successful action, what is it? See, planning is a foundation of successful action of an enterprise. The main function of planning is to increase the efficiency of the enterprise. See, effectiveness and efficiency we have done in the first chapter, in the first lecture. Okay, पहला lecture ही यही था, efficiency और effectiveness. तब भी मैंने बोला था कि ये आगे तक काम आने वाला है. Please do not forget that concept. तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपकी कॉस्ट को मेंटेन करके रखे, आप बिल्कुल अपने कॉस्ट पे रहें, आपको लॉस ना हो, एंड कॉस्ट ओरिएंटेड आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर आपको आपके प्रोडक्शन में आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो यू हैव टू हैव बेस्ट प्लान for your execution. You have to have different sort of plans जो कि आपको एक सक्सेसफुल आपके फाउंडेशन बिल्कुल बिल्ड कर पाए, एक ऐसी फाउंडेशन जहाँ पे कोई भी लैग ना हो, कोई भी तरीके का कोई भी लूप होल ना निकल सके, एंड that's how you increase the efficiency of an enterprise. See, planning aims at optimum utilization of various resources. बहुत सारे resources होते हैं जिसको आप point out करते हैं, चाहे वो material हो, human resources हो, machines हो, financial resources हो, या फिर methods भी हो. तो ये सारे resources का optimum utilization करना, इन सारे resources को optimally देखना, इन सब resources को, ये जितने भी resources हैं इनको अच्छे से use करना, ये सब जो है it will build a great huge foundation, ठीक है, जो कि which leads to your success action obviously. तो ये कभी हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब you will have, when you will have the best plan. okay, और ये plan मतलब basically कहने का मतलब ये है कि planning will help you to do this process, to go this beyond this process. okay, तो ये तभी हो पाएगा optimum utilization आपके resources का, when you will be having best plan for yourself, best plan for your enterprise, जहाँ पे आप material का अच्छे से utilize कर रहे हो, जहाँ पे आपकी human resources में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हो, जहाँ पे आपकी मशीन अपग्रेडेड हो, कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेथड्स आपके इतने प्रॉपर से टेक्निकली अच्छे से यूज होने चाहिए कि आप अच्छे से चीजों का यूटिलाइज कर सकें. तो ये सब तब होगा जब आपके पास एक बहुत सही, बहुत तरीके वाला प्लान होगा. ओके, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. अभी ये क्या है? सी, ये अपन ने पहले भी किया है. सो बेसिकली इट इज अबाउट द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो भी हैं वो अपने प्लानिंग करते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो मैनेजरियल एक्शंस जो हैं, जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उनको कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने के लिए. ऑलराइट, सो द बेसिक फंडा इज कि प्लानिंग गिव्स ए प्रॉपर डायरेक्शन, एक गाइडलाइन मिलती है प्लानिंग से, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और बहुत जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की पीस एंड हार्मोनी बनाए रखे. ओके, इट ब्रिंग कंसिस्टेंसी टू एग्जीक्यूटिव्स बिहेवियर एंड एक्शन. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी बनी हुई है, पीस है, तो ये आपके एम्प्लॉयज की इनकंसिस्टेंसी को कम करेगा और उनको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रख के
अच्छे से काम कराएगा, चाहे वो कोई भी लेवल का एम्प्लॉय हो। दे विल उनके एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो दिक्कत ना आए इसके लिए यू हैव टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जो कि एक अच्छे प्लान से आ सकता है। जब सबको अपने अपने काम पता है, कोई किसी में घुसेगा नहीं, कोई किसी के में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो दे विल हैव देयर प्लान, दे विल एग्जीक्यूट लाइक दैट, एग्जीक्यूट दैट वे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऑलराइट, ओके। सो अभी इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, अभी ये आपको देखना पड़ेगा। सी, इट इज कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज नॉट अ गेस और सडन वर्क, कोई सडन काम नहीं हो सकता यहाँ पे। इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी, ओके, इट इन्वॉल्व्स बहुत डेप्थ वाली स्टडी, एक केयरफुल एनालिसिस, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को देख के बेस्ट चूज करने का, ठीक है। तो it is not a conscious process, you have to think differently, you have to analyze differently, then you have to proceed differently. तो it is a careful analysis, आपको बहुत सतर्क रह के, वो कहते हैं ना, there is this मुहावरा, I'm not getting, मतलब कि हर पाँव पे you have to be very alert like that. तो it is a careful analysis जो कि आप करते हैं different different alternatives को देखकर एक best चुनने में, उसमें आप गलत नहीं हो सकते, उसमें you just cannot be wrong, you have to stick on that and you have to perform this way. So it evaluates every alternative with reference to its needs and resources. Planning is also conscious about problems that might arise in future. See, you have to be very conscious, you have to be very alert. Okay, conscious का मतलब होता है कि आप alert हैं, मतलब चारों खाने चौकन्ना types. So क्या होता है उससे, so sorry, yeah. तो उससे क्या होगा so sorry, उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप फ्यूचर में फेस करने वाले हैं, जो भी आप फ्यूचर में जो भी आ सकती है, उसका आपके पास में एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस होगा ऑलरेडी, तो जो ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाए एंड यू विल बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो वो प्रेपरेशन जो है अच्छे अच्छे आउटकम्स की, बुरे आउटकम्स की, वो सब कुछ इस तरीके से ही होती है। एंड इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी छिछोरे, they say that you have to prepare for failures also, we only prepare for our success, failure की कोई बात ही नहीं करता। and the dialogue hit me very hard. So similarly ये बिजनेस में भी इम्प्लाई कर सकते हो और ये अपनी लाइफ में भी इम्प्लाई कर सकते हो, where you have to be very conscious about everything, you have to be ready for every problem, जो भी आए you have to face everything. तो ये conscious process है एक तरह की। Next is efficiency, economy and accuracy. अभी ये क्या है? Efficiency of plan is measured by its contribution to the objective as economically as possible. मतलब कि इकोनॉमिकली मतलब होता है कि आपने कॉस्ट के सारे बैरियर्स को क्लियर कर लिया है और कॉस्ट पे आपने एकदम पूरी, आपका जो फाउंडेशन है वो पूरा कॉस्ट पे है, कॉस्ट का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपने दे दिया है, तो वो एफिशिएंसी का काम करेगा, इट विल बी वेरी इकोनॉमिकली सॉर्टेड। ओके, तो ये होगी एफिशिएंसी। ऑलराइट, और we must have the maximum result in the minimum cost. Obviously everybody think this way, हमको maximum outcome चाहिए, हमारा outcome बहुत maximum होना चाहिए in the minimum cost. Okay, that's how it should be. So planning also focuses on accurate forecast. Okay, it focuses on कि आपकी जो forecasting है वो बहुत accurate होनी चाहिए। It focuses on efficiency, जहाँ पे आप कॉस्ट को लेके गलत नहीं हो सकते, आपका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होना चाहिए रिसोर्सेज का। देन इट इज इकोनॉमिकली, इट शुड फुलफिल इकोनॉमिकली कि आपने जो भी पैसा लगाया है उसके आउटकम उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, दैट इज मैक्सिमम आउटकम एट मिनिमम कॉस्ट। देन एक्यूरेसी मेंट कि आप कभी गलत नहीं हो सकते आपकी फोरकास्टिंग को, एटलीस्ट यू शुड बी एक्यूरेट, एटलीस्ट यू शुड बी अप्रोप्रिएट, एटलीस्ट कि ठीक है आप में एक अप्रोप्रिएट तो हो कि चलो फिट तो हो गया, हमने 10 सोचा था, सपोज 10%, सपोज 10,000 से 10,000 kg आपको कुछ सेल करना था, आपका ये टारगेट था, आपने अराउंड 9500 भी अगर कर दिया है और आपने ये हो गया है सपोज,
तो इट विल कम इन दैट अप्रोप्रिएटनेस। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत लॉस हो गया समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इतना मार्जिन तो सब छोड़ते ही हैं। लेकिन कैसा हो कि अगर 5,000 kg भी ना बिक पाया हो तो आपकी जो फोरकास्टिंग है मार्केट को लेके वो पूरी हो गई है गलत। तो आपकी एक्यूरेसी में आप गलत नहीं हो सकते, यू हैव टू बी एट स्लाइटली comparable to the actual condition. Okay, you just cannot get wrong, पूरा wrong. Okay, at least आपकी accuracy होनी चाहिए. So that is what important, and that is what planning leads, that is what planning focus is. Okay, so focus of every kind of plan is on determination of future course of action, but course of action can be determined only on the basis, obviously, सी सबका फोकस यही रहता है कि भाई हम अच्छे से फ्यूचर का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करें, हमारा जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग चले। लेकिन वो तभी हो पाएगा व्हेन यू विल हैव एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। आगे जाके क्या होने वाला है उसकी एक्यूरेसी होनी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन ओनली यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द एक्यूरेट कोर्स ऑफ एक्शन। Okay, this automatically entails the need for forecasting of future events, definitely. All right, so now we have done the features. Okay, we have done the importance, we have done with the concept, सबसे पहले concept. Okay, तो ये तो सारा हो चुका। Now we will be dealing with the limitations, हम limitations की बात करेंगे अब, and then the planning process, and then we'll complete this chapter. Okay, so basically I want to say that कि जो भी importance के extra points हैं और जो भी features के extra points हैं, you should write on on your short notebook. ठीक है, please write, they are important. आप शॉर्ट नोटबुक में आप डिस्क्रिप्शन ना लिख के शॉर्टली लिख दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंडली, जस्ट बिकॉज जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है वो आपकी डिडक्ट कर दी गई है, वो डिलीट कर दी गई है, विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, ये वो, तो वो सब डिलीट हो गया है। तो अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, एंड व्हेन दिस इज डिलीटेड बाय द बोर्ड CBSE के थ्रू, then you have to focus on these, because then these become very important. Okay, ये important हो जाते हैं, there are like high chances कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है, बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, दैट डजंट मीन कि बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीजें बहुत अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थी पर अब ज्यादा हो गई हैं, बिकॉज देयर आर लाइक हाई चांसेस कि इन सब से क्वेश्चन आ सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लानिंग की प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिलीट नहीं करी गई है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो do not miss anything, be very focused. I am covering every corners of the chapter, I'm not leaving anything, I'm not doing, I'm just doing पूरा so that you will feel कि okay book cover कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं लगे कि बस सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं। You can correlate, you sit with your book and you can correlate the content, because I am taking that content only, so that आपको लगे कि okay जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसा ही पढ़ाया जा रहा है। Okay, so that's how I'm doing, that's how my plan is. Okay, I have also planned so many things before beginning the course, so that is my agenda, so that आपको ये लगे ना बिल्कुल भी कि टेक्स्ट बुक कवर नहीं हो रही है, आपकी फिलहाल ये टेक्स्ट बुक ही कवर हो रही है, because I am going according to textbook only. Okay, textbook का ही फॉर्मेट है, textbook का ही कंटेंट है, एक्स्ट्रा जो है वो है लेकिन कंटेंट मैं मिस नहीं कर रही हूँ। सेकेंडली, आप बुक अपनी लेकर बैठे so that you will be able to understand कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपका ये टिक करते जाए कि चलो ये हो गया कवर, और जो भी मैं साइड में शॉर्ट में लिख रही होती हूँ वो आपको भी लिखना है शॉर्ट में, पेंसिल से आपकी बुक के साइड में, आपकी शॉर्ट नोटबुक में। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस मतलब एटलीस्ट दिस मच यू हैव टू बी डिसिप्लिन। उसमें प्लीज कोई आप कोई दिक्कत ना करें, यू शुड बी डिसिप्लिन। एंड दिस इज द 4th चैप्टर, एंड क्विकली वी विल डूइंग द रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो लंबा जाएगा, लेकिन प्लानिंग इज वेरी शॉर्ट, आई विल बी डीलिंग इन 8 लेक्चर्स, हो जाएगा 8-9 लेक्चर्स में हो जाएगा सारा, तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। चलो लेट्स एंड दिस सेशन, एक तो हो गया है अभी। ऑलराइट, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।